A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Divedi and I am going to take your English classes today. We are going to start a new chapter, that is chapter number 9, A Bicycle in Good Repair. Okay, so in this story, we are going to study about a bicycle which needs to be a good repairing. Okay, so before starting the chapter, let's get through a introduction which is given over here. If you wish to go to on a long bicycle ride, the bicycle should be in a good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if the machine has a will of its own and the mechanic knows next to nothing? So in this story, it is the story about a boy who wants to go on a long bicycle ride, but he haven't seen the condition of his bike. So we'll start the chapter today and let's get through the story. A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day, and I agreed. I got up early for me. I made an effort and was pleased with myself. He came half an hour late. I was waiting for him in the garden. It was a lovely day. He said, "That's a good looking machine of yours. How does it run?" So the author is saying, a man I know proposed one evening we should go for a long bicycle ride. तो वो कहते हैं कि एक मैन से मैं जिसे मैं जानता हूँ उसने मुझे ऑफ़र किया कि क्यों ना हम लोग एक लॉन्ग बाइसिकल राइड पे चलें. मतलब एक पर्टिकुलर डे की बात हुई तो जो हम ऑथर हैं वो अग्रीड हो गए, वो मान गए. वो जल्दी उठे, फॉर रेडी हुए और जो भी उनकी चीज़ें थी उसे उन्होंने कंप्लीट की और ही वॉज वेरी प्लीज. वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे खुद से. ही केम हाफ एन आवर लेट. और जो पर्सन था वो आधे घंटे लेट आया. द ऑथर वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन. इट वॉज अ लवली डे. बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा दिन था. ही सेड, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स. तो जो ऑथर का फ्रेंड है या तो पर्सन है उनके साथ में लॉन्ग बाइसिकल राइड पे जाने के लिए, ही सेज कि जो आपकी मशीन है या जो आपकी बाइसिकल है वो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है. ये कैसे रन करती है? ओह, लाइक मोस्ट ऑफ देम. I answered, easily enough in the morning, goes a little stiffly after lunch. He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. I said, "Don't do that, you will hurt it." I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. Besides, if it wanted shaking, I was proper person to shake it. I felt much as I should had. He started waggling my dog. Waggling means beating. Okay. So now जो ऑथर है हमारे, उनके साथ में जो राइड पे जाने वाला पर्सन है, द अदर पर्सन, वो उनको जब पूछते हैं कि ये कैसे चलती है, हाउ इट रन, तो जो ऑथर है हमारे वो कहते हैं मोस्ट ऑफ दी, मतलब जैसे बाकी की साइकिल्स या बाइसिकल्स चलती हैं वैसे ये भी चलती है. एंड आफ्टर दैट जो उनके क्या कहते हैं कि फ्रेंड हैं वो क्या करते हैं, जो फ्रंट व्हील है साइक बाइसिकल का उसे होल्ड करके और क्या करते हैं, शूक कर देते हैं. मीन्स बहुत तेज़ी से उसे शेक कर देते हैं, हिला देते हैं. आई सेड, डोंट डू दैट. द ऑथर सेज कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, यू विल हर्ट इट. आप इसे हर्ट कर देंगे या बेकार कर देंगे अगर बोला जाए उनकी लैंग्वेज में. तो आई डिड नॉट सी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने क्यों शेक किया, इससे उनका कोई लेना देना नहीं था. बिसाइड्स, इफ़ इट वांटेड शेकिंग, अगर ऐसा चाहिए भी था, अगर मेरी साइकिल को या बाइसिकल को शेकिंग की ज़रूरत थी तो मैं वहाँ पे था कि मैं उसे शेक कर सकूँ. आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड. ही स्टार्टेड, मैं कुछ सोचता ही उसके बाद क्या किया उन्होंने, मेरे डॉग को वैकलिंग. वैकलिंग मीन्स क्या होता है, बीटिंग या स्ट्राइकिंग, बीट करना स्टार्ट कर दिया. ही सेड, दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स. ये जो फ्रंट सामने का पहिया है ये वॉबल कर रहा है, मीन्स नाच रहा है, अनस्टडी है. ठीक, मीन्स अच्छे से इसके जो नट्स वगैरह हैं वो टाइट नहीं है. He said, "This is dangerous. Have you got a hammer?" I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. I went to the tool shed
to see what I could find. When I come back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. He was playing with it, twiddling it round between his fingers, and remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. So what happens कि जो ऑथर के कलीग हैं या जो उनके फ्रेंड हैं वो बोलते हैं कि जो आपका बाइसिकल का फ्रंट व्हील है वो क्या कर रहा है, वॉबल कर रहा है, मीन्स नाच रहा है, स्टेडी नहीं है और ये डेंजरस हो सकता है. क्या आपके पास हैमर है? तो जो हमारे ऑथर हैं वो पहले तो बहुत ही ज़्यादा फर्म थे, बट बाद में उन्होंने सोचा कि मे बी इन्हें बिज़नेस के बारे में या साइकिल का जो भी बाइसिकल का बिज़नेस है या इसके बारे में कुछ उन्हें आइडिया होगा. सो वो अपने टूल शेड में जाते हैं, वहाँ से अंदर हैमर और बाकी के टूल्स लेके आने के लिए, जिससे कि जो उनकी बाइसिकल है वो रिपेयर हो सके. बट जैसे ही वो रिटर्न करते हैं, ही सॉ दैट द पर्सन वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड. जो उनका फ्रेंड है वो ग्राउंड पे बैठा हुआ है और जो बाइसिकल की व्हील है वो अपने लेग्स के बीच में फंसा के और फिंगर से उसके साथ में खेल रहा है. ट्विडलिंग मीन्स टर्निंग इट राउंड, ओके, बिटवीन हिज फिंगर्स. एंड रेमनेंट मीन्स जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो मशीन्स वगैरह हैं बाइसिकल की, वो ग्रेवल पाथ पे मीन्स सड़क पे ऐसे ही, रास्ते पे ऐसे ही पड़ी हुई हैं. ही सेड इट लुक्स to me as if the bearings were all wrong. I said, don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off. So जो ऑथर है वो कहते हैं कि आप परेशान मत होइए इसके लिए और ज़्यादा, आप खुद को थका देंगे, चलिए इसे जैसे था वैसे करके वापस से रख देते हैं. बेयरिंग्स मीन्स जो बॉल बेयरिंग्स होती हैं उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. He said, we may as well see what is the matter with it. Now it is out. He talked as thought it had dropped out by accident. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls. So जो सेकेंड पर्सन है, जो ऑथर के फ्रेंड है, वो क्या कहते हैं, वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विथ इट. हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इसके साथ में अगर ये बाहर निकली है तो चलो देख लेते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. सो ही टॉक्ड एज थॉट, जैसे उसने बात की और बात करते करते उसने जो जितने भी क्या कहते हैं कि बात करते करते उसने बाई एक्सीडेंटली मीन्स अचानक से उसके हाथ से वो जो था बाइसिकल का फ्रंट व्हील वो गिर पड़ता है. और उससे पहले कि वो उसे रोक पाते, ही हैड अनस्क्रूड मीन्स जितने भी उसके स्क्रू थे उसे खोल डाला उन्होंने, जिसकी वजह से सारे जो भी लिटिल बॉल्स थी वो सारे पूरे पाथ पे ऑल ओवर फैल गई. कैच, ही शाउटेड, कैच इन. We must not lose any of them. He was quite excited about them. So जो उनका फ्रेंड है वो कहता है प्लीज़ उसे कैच करो, हम इनमें से एक भी खो नहीं सकते हैं. He was quite excited, और वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी था. We grovelled round for half an hour and found 16. हम लोग चारों तरफ घूमते रहे. Grovelled means crawled on the ground. ग्राउंड पे रेंगते रहे और हमें 16 balls, small balls मिली. He said he hoped we had got them all, because if not it would make a serious difference to the machine. I put them for safety in my hat. It was not a sensible thing to do, I admit. So जब 16 के 16 बॉल्स मिल गए तो उनका जो फ्रेंड है वो बोलता है कि आई होप, मुझे खुशी हुई कि हम लोगों को ये सारे बॉल्स मिल गई. अगर ये नहीं, इनमें से एक भी नहीं मिलती तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो जाता मशीन के लिए, मीन्स बहुत गंदा लगता देखने में और साथ ही साथ बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है. तो जो ऑथर है वो क्या करते हैं कि सेफ्टी के लिए जो भी जितनी भी बॉल्स वो कलेक्ट करे रहते हैं वो सेफली उन अपने हैट में रख देते हैं. इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट. एंड ऑथर सेज बाय हिमसेल्फ कि ये सेंसिबल चीज़ नहीं थी, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. ही देन सेड दैट वाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन for me, and at once began talking of the gear case. I did try to dissuade him from that. I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper.
सो देन उसके बाद उनके फ्रेंड ने कहा कि वो किसी और चीज़ की लोग पाते, इसके पहले उन्होंने चैन के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो गियर केस था उसे बाहर निकालने लगे एंड ही सेड दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द गियर केस ऑल्सो, सो आई डिड ट्राई टू डिसवेस्ट। तो जो ऑथर के फ्रेंड थे उन्होंने उन्हें ट्राई करने की कोशिश की, उन्हें वो अपने जो इंसिडेंट था या जो उनका एक्सपीरियंस फ्रेंड था उसके बारे में बताएं कि ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो एक्सपीरियंस फ्रेंड था जिसको बहुत ही सब कुछ पता था और बहुत ही क्लोज फ्रेंड था उनका जिसे इन सब चीज़ों के बारे में पता था, उन्होंने एक बार बताया था कि अगर आपके गियर केस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप अपने मशीन को बेच करके एक नई ले लीजिएगा, वो उससे ज़्यादा चीप पड़ेगी आपको, मीन्स उससे ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। ही सेड पीपल टॉक like that who understands nothing about machines. Nothing is easier than taking off a gear case. I had to confess he was right. In less than 5 minutes, he had the gear case in two pieces lying on the path and was groping for screws. He said it was always a mystery to him the way screws disappeared. क्या इसके पहले कि वो कुछ कन्फेस कर पाता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, जो गियर केस था उनके फ्रेंड ने उसे 2 पीसेस में करके बाहर निकाल के जस्ट 5 मिनट्स में रख दिया और उसके जितने स्क्रूज थे वो फिर इधर उधर पूरे पाथ में ढनक गए, पूरे रास्ते में ढनक गया और उसे फिर क्रॉलिंग करते हुए पूरी जगह ढूंढा जाने लगा। द कॉमन सेंस कंटिन्यूड टू विस्पर टू मी स्टॉप हिम। जो मेरे अंदर का कॉमन सेंस था वो कंटिन्यूसली मुझे बोल रहा था कि इन्हें रोको, बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, इससे पहले कि वो कोई और चीज़ें करें, कुछ और गड़बड़ करें, जस्ट स्टॉप हिम। You, the ravage of a lunatic, take him by the scruff of the neck and kick him out of the gate. So, ravages means damages जो ये इंसान कर रहा है, just catch him, catch the mad person and throw him out of the gate. His mind is continuously saying to him. He gave up looking for the rest of the screws और उसने पूरा टाइम बाकी के स्क्रूज को ढूंढने में ही बिता दिया। He said screws had a knack of turning up when you least expected them. And that now he would see to the chain. और उसने बोला कि स्क्रूज को जितना ढूंढो वो उतना ही खोते रहते हैं, इससे बेटर है कि हम उसे ढूंढना बंद करके हम चेन की तरफ ध्यान दें। ही टाइटेंड इट टिल it would not lose as it was before. Then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again. Now अब हमें जो हमारी फ्रंट व्हील है उसे बैक उसकी प्लेस पे वापस से लगा देना चाहिए। I held the fork open and he worried with the wheel. At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel, and we changed places. So 10 मिनट तक ऐसे करने के बाद, बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद भी जो व्हील थी वो करेक्ट प्लेस पे नहीं आ पाई थी, तो फिर जो उसकी तीलियाँ थी, जो हमारे ऑथर वो कहते हैं कि आई शुड, कि जो उनके फ्रेंड है वो जो फॉक है उसे होल्ड करें और जो हैंडल है वो ऑथर होल्ड करेंगे, और इस तरीके से दोनों ने अपनी प्लेस चेंज की। At length we did not get the thing into position and the moment it was in position he burst out laughing. और जैसे ही पहले तो बहुत चीज़ें अपनी पोजीशन पे आ नहीं रही थी और जैसे ही अपनी पोजीशन में आई जो उनका फ्रेंड था ही burst out laughing, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। I said what's the joke, इसमें हंसने वाली क्या है बात है। He said well I am an ass. It was the first thing he had said that made me respect him. मैं गधा हूँ, उसने ऐसे बोलता है तो ऑथर को भी लगा कि पहली ऐसी कोई चीज़ उसने बोली है जिसके लिए मुझे उसके लिए रिस्पेक्ट आई है थोड़ी। I asked him what had led him to this discovery. ऐसा उसे क्यों महसूस हुआ। He said we have forgotten the balls. उसने बोला कि हम बॉल्स लगाना तो भूल ही गए। I looked for my hat. It was lying topsy-turvy in the middle of the path. तो मैंने अपने हैट की तरफ देखा, वो टॉपसी टॉपी मीन्स अपसाइड डाउन पाथ के बीच में पड़ी हुई थी। ही वॉज ऑफ अ cheerful disposition. He said, well, we must put back all we can find and trust to Providence. We found 11, we fixed 6 on the one side and 5 on the other side. And half an hour later, the wheel was in its place again. तो जो 11 बॉल्स मिली थी उनमें से उन्होंने 6 एक साइड लगाई और 5 अदर साइड लगाई और आधे घंटे बाद किसी तरीके से जो व्हील था वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया। It need hardly be added that it really did wobble now. वो इतनी हार्डली मतलब प्लेस किया गया था कि बिल्कुल भी वो लड़खड़ा नहीं रहा था। A child might have noticed it. He said it would do for the present. I said watching you do this is of real use to me.
It is not only your skill that fascinates me, but it is your cherry confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. Inexplicable means that can't be explained. Mysterious means जो चीज़ होती. Thus encouraged, he set to work to refix the gear case. He stood the bicycle against the house and worked from the off side. Then he stood it against a tree and worked from the on side. Then it held for him while he lay on the ground with his head between the wheels and worked at it from below and dropped oil upon himself. Then he took it away from me and doubled himself across it till he lost his balance and slid over on his head. Now, in this context, the whole thing is told about the bicycle repairing, that how that friend of author had managed to put the bicycle in a good situation. Then he lost his temper, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया and tried bullying the thing, और जो चीज़ थी जिसको वो कंटिन्यूसली रिपेयर कर रहा था या फिक्स कर रहा था उसी पे चिल्लाने लगा. द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी showed spirit and the subsequent proceedings degenerated into were reduced to little else than a rough and tumble fight between him and the machine. और क्योंकि कभी कोई चीज़ होती है हम लोग करते हैं और वो नहीं होती है तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा झुंझला जाते हैं, गुस्से में खिसिया के उसी पे गुस्सा उतारने लगते हैं. तो सेम चीज़ यहाँ पे उनके साथ भी हो रही थी. One moment the bicycle would be on the gravel path and he on top of it. The next the position would be reversed. He on the gravel path and the bicycle on him. तो ये लगा था कि जो नेक्स्ट सिचुएशन होगी उसमें बाइसिकल पाथ पे होगी और ऑथर उनके ऊपर होगा, बट सिचुएशन क्या हुई उसकी उल्टी हो गई कि ग्रेवल पाथ पे ऑथर पड़े हुए हैं और बाइसिकल उनके ऊपर है. Now he would be standing flushed with victory, the bicycle firmly fixed between his legs, but his triumph would be short-lived. By a sudden quick movement, it would free itself and turning upon him, hit him sharply over the head with one of its hardless. At a 1:15, dirty and disheveled, cut and bleeding, he said, "I think that will do," and rose and wiped his brow. The bicycle looked as if it is also had enough of it, which had received the most punishment. It would have been difficult to say. I took him into the back kitchen where, so far as was possible, he cleaned himself and then I sent him home. So what happened to the bicycle? अच्छी खासी बाइसिकल की पूरी बैंड बच चुकी थी, उसकी जो सिचुएशन थी वो पूरी की पूरी वर्स्ट हो चुकी थी. तो एट लास्ट क्या होता है कि जो भी ऑथर का फ्रेंड थे उन्हें वो किचन में लेके जाते हैं, वो खुद को वॉश आउट करते हैं, पूरी चीज़ें साफ करते हैं और फिर उन्हें वो घर भेज देते हैं. सो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट अ साइकिल विच वाज इन अ गुड कंडीशन एंड वो किस में आ गई, एक बैड कंडीशन में आ गई. मीन्स द साइकिल वाज इन अ गुड कंडीशन एंड इट ब्रॉट टू अ वर्स्ट सिचुएशन. ओके, सो दिस वाज द स्टोरी विच इज़ अबाउट अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर. में बहुत अच्छे हाथों में थी वो कि वो इतनी अच्छी रिपेयरिंग उसकी हुई. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस चैप्टर ओवर हियर ओनली एंड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास. टिल देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू.